So today we are going to start off with vector triangle. Vector triangle mein, the first thing you guys need to know is that it can be solved both graphically and analytically. So first we are going to look at the graphical method. Walaikum assalam. Please settle down. वालेकुम अस्सलाम प्लीज़ सर क्या है ठीक ठाक वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बेटा ये ज़रा काइंडली जो है इसको आप कर ठीक है पास इट ऑन कोई मिस ना करे आई डोंट नो बस मिस ना करना ओके सो we did parallelogram method yesterday. We are going to do vector triangle today. A vector triangle में जो graphical, so let's suppose that we have 10 Newton and 5 Newton like this, and we have an angle theta of 30 degrees right here. ठीक है? Is it clear? Now what you got to do is, again you got to take a scale. In graphical method, scale is highly important. You can take 2 newtons, 1 newton, whatever. Now once you take the scale, we will apply a method which is called head to tail. So I'll explain it while I'm drawing it. So पहला जो हमारा vector है, you can pick any by the way. So if you pick, let's suppose 10, so you draw the line for 5 centimeters because it is horizontal, so it will be like this. Okay? Now, unlike parallelogram method, what you will do is you will actually connect the tail of the next vector, which is essentially this, onto the head of the previous vector. So basically you put the protractor just like this. You measure 30 degrees from here and you extend the line to 2.5 centimeters. So what I've really done is, right here where you see is jagah pe, I have just made connected head to tail. ये आपके पास previous vector का है, the one you made first, and this is the next vector. Will you be able to remember this? Good. Now, then what you do is, because this point was the start of my drawing and this point was the end of my drawing, so I am going to make the resultant from start to end, just like this. So ये मेरे पास आ गया resultant जो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है? What you do next is that you measure resultant using a meter rule, ये ruler जो भी तुम लोग के पास है, and then convert it according to your scale. Thank you. Now, so suppose that this comes out to be 7.5 centimeters. So you'd say, okay, one centimeter is 2 newtons. Then 7.5 centimeter would be 15. So that would be the value. ठीक है? Is it clear? कोई मसला इसके अंदर? अच्छा, you could always pick any vector you want first में. It doesn't really affect you, because if you had picked 30 in the start, so you would just put the protractor, you would measure 30 degrees and you would extend the line just like this. Okay? So at 2.5 centimeter. Then you would connect the tail of the next vector, which is 10, essentially 5 centimeter like this,
and then because you started from here, you ended here, so you can just draw vector like this. See? So no matter what you do, the resultant, whether this is the resultant or that is the result, comes out to be the same direction and same value. Okay, so no matter which vector you pick first, doesn't matter. Now, generally, unless you are you really like this method and the examiner has restricted you to this, I would not recommend it, because one, it wastes time, secondly, it is somewhat inaccurate. Okay? Now, considering that, we would move to the analytical part of vector triangle. अच्छा, अब analytical part में you guys need to understand two things very important. One, cosine rule, किसी को याद है? So it is c square equals to a square plus b square minus 2ab cos of c. That is the formula, right? And the other rule was the sine rule, which was sine a over a equals sine b over b equals sine c over c. So ये दो rules हमें याद हो, ठीक है, इसके लिए. Now keeping up with the same methodology, ताकि हमारे पास एक uniformity आ जाए. So on this scale we are doing the same thing. Now analytical method में you don't really need to draw the drawing accurately, but you still need to draw some drawing. तो हम इसको solve करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. So first of all, you will apply head to tail rule. So suppose that you take 10 here, so you know this is 10 newtons, and you put the tail of the next vector right here and 5 ऐसे. So I'm making it like without any particular angle, बस मैं ऐसे 30 लिखा जैसे 30 होगा. And then I know that from the start to this is my resultant. Now to find this resultant, I have this unknown, these are the two sides known, so I got to find this angle theta. अब एक लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है? 180. So 180 minus 30, ये आ गया तुम लोग के पास 150. So what you do is you do r square equals to 10 square plus 5 square minus 2 times 10 times 5 cos of 150, because that is the angle opposite to it. समझ आ रही है? It's very simple. All you need to do is make sure कि आपका ये vector triangle पूरा बन रहा है. अच्छा, if I just quickly calculate it, I'm sure अगर तुम लोग करते हो तो तुम लोग बहुत अच्छे हो. 100% accurate आएगा. अच्छा, मैं even if you like he's restricted you to other method, graphical, तो तुम इसे check कर लो, आंसर check भी किया जा सकता है. Yes, आंसर इज अंडर रूट नहीं लिया तुमने, 15 आना चाहिए अराउंड 14.5. ठीक है, मेरा गेस था. सो 14.5 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर. सो बेसिकली उसमें हमने 15 निकाला था, ठीक है, इसमें हम 40. सो इट्स वेरी एक्यूरेट, यू कैन ऑल्सो चेक इट, बट इट्स सिंपलेस्ट. नाउ व्हाई व्हेन आई रिकमेंडेड, जब टू वेक्टर्स तुम लोग को गिवन हो ना, so you use this is the easiest. ठीक है. Now suppose he says find this angle theta right here. Suppose अब you can use sine rule, because sine of r over r will be equal to sine of 5 over this theta. हाँ सर, इसमें तो मेरे को तीन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली साइन रूल भी लगा सकते हैं, कोस रूल भी लगा सकते हैं. हाँ हाँ, लेकिन आप ड्रॉ किए बगैर ट्राइंगल नहीं बना सकते. जैसे अगर मैंने ड्रॉ ना किया होता तो ये 30 इनके दरमियान है, तो ट्राइंगल तुम्हारा गलत बनता. फिर पता है क्या आंसर आता? फिर आता साइन ऑफ कॉज ऑफ 30, वो आंसर गलत होता है. आपको बनाना है, ठीक है. सो अगर मैं साइन रूल लगाऊंगा यहाँ पे, साइन आर मेरे पास बेसिकली वाज 150, आर मैंने फाइंड किया 14.5. सो थीटा मैं फिर एक्चुअली फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है. ये जो है, सॉरी, ये थीटा है और ये 5 है. सो अब ज़रा निकाल के दो कितना आता है. आई थिंक इट शुड बी 30 से कम ही होगा, अराउंड 15 से भी कम होगा, 10 होगा, 9.9 डिग्री. ठीक है, इज़ इट क्लियर?
किसी को कोई मसला इसके अंदर, इट्स वेरी इजी। अब इसमें कुछ चीज़ें जो वेक्टर ट्राइंगल में तुम लोगों को तंग करेगी वो हम करेंगे, ठीक है। दैट्स करेक्ट, दैट्स 14.45, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है दैट यूजुअली आपको ख़ास तौर पे MCQ में, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू फर्स्ट एग्जांपल हियर। सो एग्जांपल सेज के suppose that you got to have a vector which is q like this, ठीक है। There is another vector which is p, ठीक है। They say that if r equals to q minus p, so sketch R। यूजली ये गिवन ही होगा क्वेश्चन में, MCQs में आता है, सो यू हैव टू नो ये क्या है। अब ये क्या हम करेंगे, यू सी दैट द इक्वेशन इज Q माइनस P। सो फर्स्ट ऑफ ऑल Q तो पॉजिटिव ही है, विच मीन्स Q हैज़ द सेम वेक्टर एज दिस। P जब माइनस करोगे, हमारे पास ये पॉजिटिव P है, तो माइनस P शुड बी एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे हैव गिवन यू। इज इट क्लियर? नाउ बिकॉज रिजल्टेंट क्या है, इसको हमने ऐड करना है दोनों को, तो रिजल्टेंट निकालना है। कैसे ऐड करेंगे? वेक्टर ट्राइंगल मेथड से। सो वी आर गोइंग टू मेक एनी वेक्टर, तो P बना लो, Q बना लो, डजंट रियली मैटर। सो इफ़ वी मेक Q फर्स्ट एंड देन अटैच माइनस P, सो द रिजल्टेंट जो तुम लोग को फाइंड करना है दैट इज दिस R। ये बात समझ आ गई? एंड विद द एरो। नाउ इफ somebody had taken, so I'm just doing it here, if somebody wants कि मैं minus P पहले draw करूँ, fair enough, and then you say okay I want to draw Q which is right here, then again the resultant would not really change because resultant would still be the same, doesn't matter। लेकिन ये याद रखना कि when the equation is given, minus का मतलब you have to reverse the diagram, exact opposite होना चाहिए। इज इट क्लियर मेरे बच्चों? वेरी गुड। ओके, अब मैं तुम लोगों को क्वेश्चन एक देना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स सी इफ यू गाइस कैन मैनेज इट, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, सो द एग्जांपल इज .5 Newton right here, and it is at 30 degrees, and there is another vector which is somewhat like this, vertical vector, and that's 7.5 newtons, ठीक है। पहले उसने कहा है पार्ट A में draw resultant vector, and then in the part B it says show that the magnitude of resultant is 6.6 Newton. Alright, finally in the last part it says find the direction of R with the vertical. So you need to find the resultant R and its direction from the vertical. ये question है. Look at it. You guys can see it, right? Yes. चलो, take your time. 5 minutes. See if you guys can have it.
रिमेंबर टू मेक हेड टू टेल रूल फर्स्ट. तुमने सही किया. राइट. नो नो. हाँ, जस्ट अ स्केच. वो हमेशा अगर कहेगा ना, कहेगा ड्रॉ अ स्केल डायग्राम, अगर वो कहेगा स्केल का, ठीक है. अदरवाइज यू डोंट हैव टू. You guys got any answer? Answer 6.6 आना चाहिए वैसे. थीटा का आंसर बता दो, उससे पता चल जाएगा if you've done it right. सिक्स 6.6 आ गया. चलो अब थीटा निकालो जल्दी से. शाबाश. लास्ट पार्ट. किसी को ना समझ आई हो थीटा तक, प्लीज़ लेट मी नो. नहीं आई? सो तुमने डायग्राम पहले बना लिया. डायग्राम तुम्हारा ऐसे है, ऐसे बनाया नहीं ना, बिकॉज हेड टू टेल आपने नहीं ज्वाइन किया. दिखाओ ज़रा. अच्छा, ये तो बनाओगे तो फिर होगा मेरे बच्चे. सो इफ़ यू ड्रॉ 7.5 फर्स्ट, फिर इसका टेल ज्वाइन करोगे इसके साथ, सो इट विल बी लाइक दिस. ये 2.5 है, एंड देन योर रिजल्टेंट इट विल बी स्टार्ट टू एंड. ये रिजल्टेंट है. अब इसके अंदर आई मीन इधर जो एंगल है ना मेरे बच्चे, इट्स 30 डिग्रीज फ्रॉम हेयर, विच मीन्स 30 डिग्रीज फ्रॉम हेयर. ऑल्टरनेट एंगल, राइट. ये टोटल 90 है. ये कितना हो गया? 60 हो गया. अब दो साइड्स हैं और एक 60. कोसाइन रूल लगाओ, फाइंड करो. हाँ, इसका मतलब है ये, बिकॉज वर्टिकल से ये डायरेक्शन होगी ना. यू वुड वांट टू टेल देम एग्जैक्टली. एंगल्स इसमें पक्के होने चाहिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द एंगल दैट इज़ ऑपोजिट आर. अगर आप वो नहीं फाइंड करेंगे ना, फिर आपका आंसर सही नहीं आ सकता. सो आर इज़ गोइंग टू बी 6.6 न्यूटन्स. ओके, द लास्ट पार्ट. एनीबडी गॉट एन एंगल? $19.1. 19.1. एक्सीलेंट, दैट इज़ करेक्ट. बिकॉज आपको साइन थीटा 2.5 के ऑपोजिट चाहिए, तो आपने 2.5 नीचे रखना. हेयर इट विल बी साइन 60 डिवाइडेड बाय 6.6. सो इट शुड कम आउट एज 19.1 आ रहा है मेरे पास, लेकिन जो भी तुम लोग 19 डिग्रीज वुड बी फाइन. ठीक है. एनी क्वेश्चन हेयर? किसी को ना समझ, एक और क्वेश्चन दे दो फिर. चलो. क्यों बेटा, नो क्यों?
सॉरी फैक्टर्स के ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं आते? नहीं, दोनों में आते हैं, ये कंफर्म क्वेश्चन है। अच्छा सो सब हाँ हाँ, ये किस चीज़ का बोल रहे थे? यार अगर तुम पिक्चर भेजोगे सो आई विल अंडरस्टैंड। पिक्चर पिक्चर अच्छा फोकस, हाँ ठीक है। ओके हाँ हो सकता है। हाँ ओके, ये मुझे समझ नहीं आ रही क्वेश्चन, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। आई वांट यू टू सेंड इट किसी भी तरह। ओके सो इट सेज दैट द रिजल्टेंट फोर्स, चलो रिजल्टेंट फोर्स of arrow y will be greater than x, ठीक है, arrow है equivalent bow है sorry, and then it says that what is the increase in resultant force. अब तुम लोगों को ये पता होना चाहिए बिकॉज यू सी देर आर टू डिफरेंट सेट ऑफ डायग्राम्स, दोनों में रिजल्टेंट फोर्स डिफरेंट होगी। यू गॉट टू फाइंड दोनों में एंड देन फाइंड द चेंज। चलो शाबाश निकालो जल्दी से। वही बनाना है, यू हैव टू मेक हेड टू टेल बनाओगे, एंगल्स वर्कआउट करोगे तभी ये क्वेश्चन होगा। सर पूरा एज लेवल कैसा है? कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें ऐसा नहीं है, जिसमें मैथ ही टेस्ट होगा ऐसा कुछ है? हाँ केमिस्ट्री भी टेस्ट होगी अभी, एक चैप्टर है केमिस्ट्री वाला, एक A2 में केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, ये इसमें सर कौन सा चैप्टर है? न्यूक्लियर फिजिक्स में बड़ी सी और आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस। चलो सही, ये भी अच्छा है जी मेरे बच्चे। इसने इसका किसी ने निकाल, अब तो तुम लोग ऐसे करना चाहिए यार, क्या हो गया तुम लोग? ठीक है हाँ रिजल्टेंट क्योंकि एंगल सेम रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल ही होगा, लेकिन निकाल लो पहले हेड टू टेल विल आप बनाएं, देन यू विल बी एबल टू गेट द एंगल। ऐसे कभी नहीं बनेगा।
कहाँ पे? ये 100 बनाया, ये 100 बनाया। हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप इसके एंगल वर्कआउट करो साथ। जिसको नहीं समझ आ रही है प्लीज लेट मी नो, आई एम जस्ट ऑन बोर्ड। पहला एक ये एरो तो बना लो जिस एंगल में नजर आ रहा है। ये 100 बनाओ, एक यहाँ पे लगा। बहुत सारे बना ली। ये 100 इसकी टेल ड्राइंग करो हेड के साथ। जी ये बना लिया हमने। अब ये 100 इस जगह से रिजल्टेंट है यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करो। ये हो गया। ये 100 इसके साथ 65 एंगल है कितना चाहिए 65। दूसरे का एंगल किधर यहाँ यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल एंगल देखो। अब ये रिजल्टेंट निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल इधर भी आ जाएगा 65। टोटल 180 में माइनस करोगे तो अभी तो हॉरिजॉन्टल में है। ट्रायंगल के बाहर में बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ, पहले एंगल नहीं देखो। आपका 100 मैंने ऐसे बनाया, ये अच्छा उससे करके हाँ हमारा ड्रॉ करना जी आप करो। पहले में नजर आ रहा है ना 100 एक वेक्टर बनाओ पहले, जैसे तुम्हें लग रहा है ना जैसा पिक्चर में नजर आ रहा है वैसा वेक्टर बनाओ। कोई भी एक 100 है ना नीचे ऊपर वाला जैसे लग रहा है पिक्चर में बनाओ जहाँ पे फोर्सेस गिवन है 100 की वहाँ पे एक ऐसे लाइन बनाओ 100 जैसे मैंने बनाया है ना उस तरह। हेलो दूसरा जो वेक्टर है ये वाला नीचे वाला बनाया ना, दूसरा वाला वेक्टर इसके हेड पे रख के दूसरा वाला वेक्टर ड्रॉ करो। ये हेड है, ये हेड। हाँ करो जरा, दोनों वेक्टर ड्रॉ हो गए। ये 100 है, ये भी 100, लिखो 100। अच्छा अब सर अभी पहला इसका ये एंगल ये रिजल्टेंट है, इसमें ये स्टार्ट था ना तुम्हारा पॉइंट, ये हेड है, ये रिजल्टेंट है। सर अंदर वैल्यू सेंटीमीटर ले लिया न्यूटन में। चलो ठीक है, अगले के बाद स्टार्ट से वैसे हो जाए बात ये सॉफ्टवेयर ट्रांजिशन मैं भी ये मैं पहले ये होता था वो रिजल्टेंट अच्छा अगले के बाद उल्टा लगा स्टार्ट टू एंड ऐसे समझ गए। अब ये वाला जो वेक्टर है इसका जो एंगल था पूरा हां ये सेंटीमीटर में वैल्यू इसका वेक्टर एंगल किधर के गया 65 के जाएगा इस डायग्राम यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ ना देखो भाई क्या है हॉरिजॉन्टल के साथ था तो यहाँ 65 हो गया, ये लाइन के साथ
ये वाला है तुमने 53 पर 65 plus 65 और 180 plus तुमने पिछला क्या लिखा? पिछले में ऐसे ही ये कोई फिजिक्स नहीं है 180 minus 65 minus 65 ये बनता है 130 130 में से अब हमारे पास 100 की साइड की आपकी ये भी आपकी एंगल आ गई इसके ऑपोजिट को दूसरा कैसे करो हाँ ये क्या है ना ये समझ नहीं हमारे पास ये 200 है पहला 100 आ गया एक लाइन लगा पहले 100 के दूसरा 82 पेज लगा 84 यूनिट लगा अब ये आपने कहा ये एंगल ये एंगल 65 हो गया एंगल प्रॉपर्टी तो ये 65 ये 50 वाला आएगा आपने ये एंगल फाइंड करना करो दोबारा जी सर मैं आ रहा हूँ बेटा हाँ सर पहले तो बनाओ पहला वाला वेक्टर कोई वेक्टर तुम्हारे दिल में है वो बनाओ और ये सब पढ़ने आए हो बेटा ये सीरियसली पढ़ो यहाँ पे नीचे 100 बनाओ जैसा तुम्हें लगता है ना फर्स्ट ऐसे ये फर्स्ट कोई भी वेक्टर आप 100 में बच्चे एक बना दो जैसा तुम्हें लग रहा है ये बनाया तुमने ऊपर वाला ऐसे ही ना अब ये नहीं बनाओ इसे छोड़ दो बेटा पीछे लगा ये 100 बना ली इसके हेड के साथ दूसरा 100 वाला वेक्टर जोड़ो जैसा तुम्हें लगता है ये आपने वेक्टर बनाया है ये इसकी टेल इधर रखोगे तो ये ऐसे नहीं आएगा हाँ बिल्कुल सही है अब यहाँ स्टार्ट किया था ये तुम्हारे समझ रहे हो ये वाला वेक्टर है डायग्राम देखिए अब तुम देखो